ادا کرتے ہیں ایک بار پھر خداوند نے یہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حالات اجازت نہیں دیتے ہیں ہمیں اکٹھا ہونے کی اس ملک کے قانون کے مطابق، اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی اس آن لائن عبادت کا انتظام کرتے ہیں، اور خداوند کا یہ فضل ہے ہم پر کہ ہر سنڈے خدا کے خادم پاسٹر آصف سیموئل اس عبادت کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور خدا ان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کے کلام کی بات کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں جب ہم خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یقیناً ہم برکت پاتے ہیں۔ اور آج بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہم کو برکت دینے کو ہے، کیونکہ خدا ان کا کلام جہاں پر بھی بویا جاتا ہے کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، وہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے جو اتنے مشکل حالات کے اندر جنہوں نے اس سارے سلسلے کو جاری رکھا ہوا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے حالات ہیں، کووڈ-19 کی جو وبا اس وقت چل رہی ہے، اس کے لیے بھی خدا کے خادم یہ جو اس منسٹری کو چلا رہے ہیں، گویا کہ دوسرے ڈونر کے ذریعے چاہے اپنی کلیسیا کی جو ہیلپ ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کاوش ہوتی ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ خدا کے لوگوں تک جتنی ہیلپ ہو سکے وہ ضرور پہنچائیں۔ اور اس کے لیے بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم دعا بھی کریں گے خدا ان کے سارے فضل کے لیے کہ خدا اپنے بندہ کو اس منسٹری کے حوالے سے، اس منسٹری کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک بار دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور ان کو تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا ان کا کلام بے شک زندگیوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کل کے اس دور کے اندر بے شک مشکل دور ہے، اور ہر شخص کے سامنے چیلنجز ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہر شخص اپنی تکلیفوں کے اندر، اپنے چیلنجز کے اندر پریشان ہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سارے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کون رہ جاتا ہے؟ ایک خدا ہے اور اس کا کلام ہے جو آپ کو ایک بار پھر اثر نو تقویت دے کر دوبارہ سے کھڑا کرتا ہے، تاکہ آپ اس چیلنج کا، اس پریشانی کا، اس تکلیف کا، اس گول کا مقابلہ کر سکیں اور آپ ون ہو سکیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ، آپ کا بھروسہ، ایمان زندہ خدا پر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہم بات کریں گے سرفرازی کے حوالے سے۔ جس طرح سے ابھی خدا کے خادم نے گیت میں بتایا کہ خدا کے بندہ حزقیل سروش نے یہ بڑا خوبصورت گیت لکھا کہ یہی ہے خزانہ میرا مال و متاع۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سرفرازی۔ گویا کہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں دنیا کے اندر دنیاوی جن کے ذریعے سے سرفرازی حاصل کی جا سکتی ہے، مال و متاع حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کے بندے، خدا کے لوگ، جس طرح حزقیل سروش کہہ رہا ہے گیت کے اندر کہ یہی ہے خزانہ میرا مال و متاع، میرا خدا میرا مال و متاع ہے، اگر وہ میرے پاس ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ خدا کے بندہ پطرس نے جب اس کو اس جنم کے اس لنگڑے، اس لولے نے مانگا کہ میں مانگنے والا ہوں، مجھے کچھ دے دے، تو کلام کہتا ہے اچھا انسان اپنے اچھے خزانے سے کیا نکالتا ہے؟ اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اور اس نے اپنے اس اچھے خزانے سے اچھی چیز نکال کر اس کو ایسی چیز دے دی جو کوئی روپیہ، پیسہ، دولت نہیں دے سکتا تھا۔
लेकिन आज हम देखेंगे कि राइट वे, व्हाट इज द राइट वे जिसके ज़रिए से सरफराजी हासिल की जाए। गोया जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे और भी तरीक़ाकार हैं, कारोबार हैं, कई तरह के कारोबार हैं, ऐसे कारोबार हैं जिनको आप करते हैं तो शुरू करते ही पैसों के ढेर लग जाते, पैसा आना शुरू हो जाता, दिन रात पैसा आना शुरू हो जाता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम की रोशनी के अंदर कि जो सरफराजी खुदावंद आपको देना चाहता है, जिसके अंदर सकूनत है, जिसके अंदर आपकी इज्जत है, जिसके अंदर जिसके साथ साथ आपको हमेशा की ज़िंदगी भी मिलती है, पुरसकून है, आप इत्मीनान के साथ, वो सरफराजी कैसे हमको मिल सकती है? खुदावंद क्या उसके बारे में बयान करता है अपने जिंदा कलाम के अंदर। आइए मेरे साथ देखते हैं पहला पत्रस और उसका 5 बाब देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 बाब और उसकी 6 और 7 2 आयात हम उसकी देखेंगे कि खुदावंद क्या फरमाते हैं। जो लोग सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, सरबुलंदी, खुशहाली, तरक्की, आजकल के दौर के अंदर क्या है, लोग परेशान हैं और सरफराजी के पीछे भाग रहे हैं, सरफराजी के पीछे भाग रहे हैं, तरह तरह के जो है तरीक़ाकार अपना रहे हैं। जो जिसके पास बाइसिकल है, जो छोटे से छोटा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं बाइक ले लूँ। जो जिसके पास साइकिल है वो कह रहा है मैं बाइक ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ। जो मोटरसाइकिल वाला वो कह रहा है कि मैं गाड़ी ले लूँ। गाड़ी वाला कह रहा है कि मैं एल्फर्ड और उससे बड़ी गाड़ी ले लूँ। उससे बड़ी गाड़ी वाला कह रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर तक पहुँचूँ, और हेलीकॉप्टर वाला उससे भी आगे जहाज़ तक जाने। दिन रात एक तगो दो में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हम सरफराजी हासिल करें, तरक्की, तशफ़ी, तसल्ली, इत्मीनान और जो है खुशहाली को हासिल करें, और सबसे बड़ा मैं बन जाऊँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो आपको सरफराजी देना चाहता है, उसको आज हम देखें। खुदावंद किस तरह से आपको सरफराज करना चाहते हैं, और खुदा के कलाम का क्या तरीक़ाकार है आपको सरफराज करने का। हालेलुया। आइए देखते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से 1 पीटर चैप्टर नंबर 5 उसकी 5 और 6 आयत को हम देखेंगे। खुदावंद का कलाम कहता है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। खुदा का कलाम, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो अनमोल है और बाबरकत है, जब हम उसको समझ के पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत यहाँ पर लिखी है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। खुदा का बंदा पतरस अपने लोगों, कुचक के लोगों को ये लेटर, ये ख़त अरसाल करता है और उनको तंबीह करता है, उनको बताता है इस ख़त के ज़रिए कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो। क्योंकि उस दौर के मुताबिक भी जब हम देखते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि वो लोग उस वक़्त नाला थे, परेशान थे, तकलीफ़ों में घिरे थे, चैलेंजेस उनके सामने भी थे। उस वक्त खुदा का बंदा उनको ये ख़त अरसाल करता है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो, फरोतनी से रहो, ताकि वो वक्त पर तुम्हें क्या करे, सर बुलंद करे। अय्यूब की किताब को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़े क्लियरली उसका मुतालिया जब करते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा का बंदा अय्यूब नबी जो अपने ईमान पर कायम रहता है। जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके पास बहुत सारा मालूमात था, यहाँ तक कि उस एरिया के अंदर, उस इलाके के अंदर उस जैसा अमीर ज़रदार कोई शख्स ना था। इतना अमीर वो शख्स था, मालदार था, बेटे बेटियां, नौकर चाकर, घोड़े, बैल,
गधे, जो उस वक्त दौर के मुताबिक उस दौर की दौलत थी, वो यही दौलत हुआ करती थी। जिसके पास ये मालो मता होता था तो वो बड़ा कामयाब और बड़ा मालदार शख्स गिना जाता था। तो क्या होता है उसके ऊपर जब आजमाइश आती है तो आप देखते हैं कि किस तरह से एक ही दिन के अंदर, खुदा उनका कलाम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक के बाद उसका नौकर आ रहा है और उसको बुरी खबर सुनाता जा रहा है। एक कहता है कि बिजली गिर गई, सारी भेड़ बकरियां मर गई। दूसरा कहता है कि सबा के लोग आ गए जिन्होंने हमसे ऊंट और मालो मता छीन लिया। दूसरा और तीसरा आकर इसी तरह बताता है कि सारा जो है तेरे एक बेटे और बेटियां एक घर के अंदर दावत पर मौजूद थे और वो उनके ऊपर वो एक तेज आंधी चली और क्या हुआ कि वो मकान गिर गया और वो सब के सब मारे गए। और खुदा का बंदा क्या करता है, अपने पैरों को चाक करता है। आजमाइश आन पड़ी है। आजमाइश के दौरान आप देखते हैं कि इतनी गंभीर बीमारी उसको लग जाती है और वो परेशान दर बदर फिरता है। उसको कोई पास नहीं बिठाता, ना उसके पास कोई बैठना चाहता है, क्योंकि उसमें से बदबू आती है। इतने इतने जख्म, इतने इतने फोड़े उसके जिस्म पर बन गए, कीड़े उनके अंदर चलना शुरू हो गए और लोग उसके पास बैठना पसंद है, उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर जो उसकी बीवी थी, जो उसका सबसे जो करीबी रिश्ता, वो भी उसके खिलाफ हो गया। उसको बोलती है कि तू कौन से खुदा की इबादत करता है, कहाँ है तेरा खुदा जो तुझे बचाता नहीं। और खुदा का बंदा अपनी ईमान पर, अपने उस फेथ पर, भरोसे पर कायम रहता है कि मेरा खुदा जिंदा है और वो मुझे क्या करेगा, फिर से बचाएगा और सरफराज करेगा। हालेलुया। और जब इसके आखिरी हम देखेंगे, मेरे साथ देखें आप अय्यूब की किताब, उसका 42 बाब और उसकी 10 से 16 आयत को हम देखते हैं। लिखा गया है, ये सारा मरहला जब अय्यूब के ऊपर गुजरता है, अय्यूब परेशानियों में से गुजरता है, सारा नुकसान हो जाता है, वो बिल्कुल लुट फुट जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुदावंद उसको फिर से याद करता है और फिर से खुदावंद उसकी फरियाद को सुनता है, उसको मुआफ़ करता है और उसको फिर से सर बुलंद करता है। और देखें, लिखा गया है, और खुदावंद ने अय्यूब की सीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाता है तो आपका मता, मालो मता जो पहले से भी दुगना हो जाता है। जब खुदावंद सरफराजी देता है तो क्या होता है, पहले से भी माल दुगना जाता है। खुदावंद का बंदा फरोतनी के साथ अपने खुदा के उस कवि हाथ के नीचे अपना वक्त गुजारता है, ना कि उसके खिलाफ बुड़बुड़ाता है, ना कि कोई और रास्ता इख्तियार करता है, बल्कि फरोतनी के साथ अपने वक्त को गुजारता है उसके नीचे और कहता है कि खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू मुझे बचाएगा। उसकी आस रखता है। उस फरोतनी की वजह से उसको क्या होता है कि फिर से खुदावंद सर बुलंद करता है और उसका माल, जितने 7,000 घोड़े बैल थे, वो सब के सब क्या हो गया, डबल हो गए। हालेलुया। यह है खुदावंद का तरीकाकार। खुदावंद के साथ जब आप चलते हैं, जब उसके हाथ के नीचे, उस कवि हाथ के नीचे, वो कवि हाथ जो इख्तियार रखता है, वो कवि हाथ जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, वही कवि हाथ जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, वो कवि हाथ जो हुक्म देता है, उसके नीचे जब आप रहते हैं तो खुदावंद सर बुलंद करता है। आगे देखते हैं, लिखा है, तब उसके सब भाई और सब बहनें, उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया
और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे एक सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की एक बाली दी। आप देख रहे हैं कि जब वो बीमार था, जब उसके ऊपर आजमाइश थी, तो सब के सब रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब छोड़ चुके थे। लेकिन जब खुदा ने सरफराजी की तो खुद ब खुद वो सब के सब उसके पास फिर से आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे बल्कि तोहफे भी ला रहे हैं, और उसको सिक्का भी एक एक दे रहे हैं और बाली भी दे रहे हैं। और उन आफतों को, उस आजमाइश को याद करके खुदावंद के आगे फरियाद भी करते हैं कि तूने किस तरह से अपने खादम को फिर से बचाया है, फिर से उसको महफूज किया, फिर से उसको सरफराजी दी। और ये क्या था? उस फरोतनी का सिला था जो उसने दिखाई और अपने खुदा के कभी हाथ के नीचे ठहरा रहा। आगे देखते हैं, यूं खुदा ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं, और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कोसिया और तीसरी का नाम कुर्न हपूक रखा। और उस सारी सरजमीन में ऐसी औरतें कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हों, और उसके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। और उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीता रहा और अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। और अय्यूब ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला पढ़ने का मतलब है कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को फिर से बुलंद करता है, सरफराज करता है, और वो कभी हाथ कितना जोरावर है, कितना पावरफुल है, जो अपने इरादों में कायम रहता है। यूना नबी को जब हम देखते हैं, खुदावंद यूना को कहता है कि जा नैनवा के लोगों को क्या पैगाम दे दे जाके कि तुम लोग क्या हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, फना फिला हो जाओगे। तो यूना नबी क्या करता है? जाता है? नहीं जाता, क्योंकि उसके दिल के अंदर अपना एक मंसूबा है, अपने सोच के मुताबिक वो मंसूबा घड़ लेता है। वो समझता है कि अगर मैं जाकर अपनी उनकी बर्बादी की खबर उनको सुनाऊंगा तो ज़रूर है कि वो लोग क्या करेंगे, मुझे मार देंगे, कि मैं तो उनको बर्बादी की खबर उनको बता रहा हूँ। वो क्या करेंगे कि करो इन लम्यात, नाले तेनू पूछ लेने तो नाले तेरे खुदा नू भी, इज़न्ट इट? और ऐसा होता है जब किसी बड़े जोरावर शख्स के पास हम जाकर कोई ऐसी बुरी खबर उसको देते हैं, और उसके खुशहाली के अंदर हम उसकी बदहाली की खबर कहते हैं कि तू बदहाल हो जाएगा, तो क्या वो खुश होगा? वो गुस्सा कर जाएगा, और गुस्सा करेगा, और यकीनन वो हम पर चढ़ आएगा, और जो भी उससे हो सकेगा वो करेगा। और वो इस कदर बदकार लोग थे कि वो यूना नबी जो है वो इस बात को समझता है कि ऐसा होगा, जब मैं जाकर ये खबर सुनाऊंगा तो ज़रूर है कि वो लोग मुझे मार देंगे। तो क्या कहता है? खुदा के उस हुक्म से इनकार करता है, वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता है। वो क्या करता है? जब खुदा से बहस करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो क्या करता है? दूसरे उसके अपोजिट साइड को जाने वाले जहाज में बैठ जाता है ताकि वो इस आजमाइश से बच सके। वो जाकर वहाँ उनको पैगाम ना दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो उसको मार दे। लेकिन खुदा का कभी हाथ, खुदा के जो इरादे हैं वो कायम रहते हैं। खुदावन जो काम करना चाहता है वो करके रहता है। तो जब यूना उस जहाज में बैठता है तो क्या है? तूफान आ जाता है। खुदावन का हुक्म, वो वही खुदा है जिसका हुक्म सारी कायनात मानती है। आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे सब उसका हुक्म मानते हैं। और खुदावन उस समंदर को हुक्म देता है कि वो उसमें तूफान आ जाता है। लोग उस जहाज़ के लोग क्या करते हैं? वो मालो मता जो होता है जहाज़ के ऊपर, वो सारा समंदर के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं कि शायद ये वज़न ज़्यादा होने की वजह से, पहले तो ये समंदर में ये जहाज़ इतने तूफ़ान के अंदर संभल जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं संभल रहा है? क्या वजह है? वज़न ज़्यादा हो चुका है। वो अपना माल फेंक देते हैं
अपना उसको वज़न कम कर दे, लेकिन क्या होता है कि समंदर का तूफान उसी तरह ही उस जहाज़ को डामाडोल रखता है। और फिर उनकी नज़र जब यूना नबी पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि उठ, तू भी अपने खुदा को याद कर। सब लोग अपने अकीदे के मुताबिक अपने अपने खुदाओं को याद कर रहे हैं, तू क्यों नहीं उठ रहा है? तू भी याद कर अपने खुदा को, हो सके कि ये तूफान थम जाए और हम बच जाएं। लेकिन यूना जब आँख खोलता है तो देखता है, उसको फौरन खुदा का रूप बताता है कि उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। तो क्या कहते हैं कि वो कहता है कि मुझे इस समंदर के अंदर फेंक दो, इस सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये स्टोरी ये मैं आपके साथ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि खुदावंद किस तरह से अपने कभी हाथ के ज़रिए यूना को जब वो उसको समंदर के अंदर फेंकते हैं तो खुदा किस तरह से उस मछली के ज़रिए उसको बचाता है। उसको मछली निगल जाती है, बाइट नहीं करती। आप इस बात का अंदाज़ा करते हैं, जब आप खाते हैं ना कुछ भी, तो जब हमारे स्टमक के अंदर चलता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसी ख़ास रतूबतें ऑटोमेटिक रिलीज होती हैं जो माल जो भी अंदर खाया जाए उसको गलाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खुदावंद ने उस कभी हाथ के जरिए उस मछली को रोक दिया, ऐसा करने से उसके निज़ाम इंहज़ाम को रोक के रख दिया। उसको पूरे का पूरा वो अंदर निकल चुकी है और उस पाताल के अंदर और फिर उस मछली पर और फिर उस मछली के पेट के अंदर भी खुदा का कभी हाथ मौजूद है और उसको बचा के रखा है उसको, ताकि वे खुदावंद के उस मंसूबे को पूरा कर सके। हालेलुया। खुदावंद का कभी हाथ आपको और मुझे बचाने की, सरफराज करने की कुव्वत रखता है। यशायाह की किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। खुदावंद आपको बचा भी सकता है और खुदावंद आपको वक्त पर सरफराज भी कर सकता है। ज़बूर के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब आप खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने ईमान पर कायम रहते हैं अय्यूब नबी की तरह, और उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहते हैं। फरोतनी कहते हैं हलीमी को। आज के दौर के अंदर जिसके पास 4 पैसे आ जाएं वो खुदा बन जाता है। फरोतनी तो बहुत दूर चली जाती, हलीमी बहुत दूर चली जाती। उसकी वजह क्या होती है कि वो पैसा, वो सरफराजी खुदावंद की तरफ से नहीं है। जो शख्स खुदावंद की तरफ से सरफराज होता है वो यकीनन फरोतन होता है और हलीम होता है, और हलीमी के साथ जब अपने खुदा के कभी हाथ के नीचे रहता है खुदावंद और डबल उसको बरकत देता है, ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वाज की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हर काम का एक वक्त है। जब हम इंसान इस दुनियावी हालात को सामने रखते हैं और क्या करते हैं कि अपने मंसूबा जात बनाना शुरू कर देते हैं उस वक़्त, और उन्हीं मंसूबों के ऊपर हम कायम रहना चाहते हैं। हम खुदावंद को, अपने जिंदा खुदा को, जो कवि है, जो कादिर है, जो जोर आवर है, जो अजीम है, जिसकी अजमत की गवाही सारी कायनात देती है, उसको वक्त नहीं देते, उसको अव्वल दर्जा नहीं देते, तो फिर क्या होता है? हमारे मंसूबा जात फेल हो जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है इरादा जो है वो खुदावंद का ही कायम रहता है। किसका इरादा कायम रहता है? खुदावंद का। आदमी के दिल में बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन इरादा खुदावंद का कायम रहता है। जो खुदा ने आपके लिए प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक खुदा ने उस प्लान के अंदर आपकी सरफराजी रखी होती है, और उस सरफराजी का एक वक्त होता है। उसको हमें समझने की ज़रूरत है। फरोतनी के साथ उसके कभी हाथ में, उसके कभी हाथ के नीचे हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है।
उस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद उस मुकर्रर वक्त पर अच्छे तरीके से ठीक वक्त पर आपको और मुझे सरफराज करे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने मंसूबे के तहत अपने तरीके से काम करने की या सरफराजी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं और हम ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने अव्वल दर्जा अपने खुदा को नहीं दिया, हमने उसके कभी हाथ को नहीं समझा। खुदा का बंदा कहता है, पानी दे सोतियां दी हरनी हो जिवें तरहाई, रूह मेरी तेवें रब्बा तेरी तिहाई आही। खुदा का बंदा दाऊद उस दौर का बादशाह है। बादशाह होने के बावजूद अपनी तड़प, अपनी प्यास अपने खुदा के लिए ज़ाहिर करता है कि खुदावंद मैं कदों जावां तेरे सामने हुआ हाजिर। वो अपनी तड़प को, अपनी प्यास को कह रहा है, एक हरनी के साथ तशबीह दे रहा है कि जिस तरह आप देखते हैं डिस्कवरी के ऊपर भी, अब तो ये आम बात है, हम देख सकते हैं डिस्कवरी चैनल पर किस तरह से हरनियाँ जो है गर्मी, जो मई जून की गर्मी होती है उसमें बहुत वो परेशान बिलक रही होती हैं पानी के लिए। और डिस्कवरी में उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च की है कि कोसों दूर, कई मील वो सफ़र करके भी उनको जाना पड़े पानी के लिए तो वो जाती है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। उसी तरह से उसके साथ खुदा का बंदा तशबीह दे रहा है कि मेरी जान जो है प्यासी है तेरी। वो उस दौर का बादशाह है, उसके वक्त, उस वक्त के मुताबिक उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्यास को, अपनी तड़प को, ताकि खुदावंद उस सरफराजी को बनाए रखे, उस सरबुलंदी को, उस इज़्ज़त को। जब मैं और आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो घर के अंदर दाखिल होते भी हम बाबरकत होते हैं और घर से बाहर जाते भी बाबरकत ठहरते हैं। और बाबरकत होना, ब्लेस्ड होना, बाबरकत होना, ब्लेस्ड होना, सरफराज होना, और लोगों में आपकी इज्जत होती है। लोगों कलीसिया के बुजुर्गों में आपकी इज्जत होती है। कलीसिया के बुजुर्ग आपको उस मशवरा जो भी करना होता है उसमें आपको साथ लेके चलते हैं। हालेलुया। और ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से मिलता है जब आप खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम की वजह से।